Hello everyone, I welcome you all in this lecture. Today we are going to see about the mixing operation. So in this lecture we are going to discuss about the introduction of mixing, objectives of mixing, application, mechanism of action which are involved in mixing processes, then lastly the equipments used to perform this mixing. So generally the mixing is most widely used operation in which what happens in mixing? In mixing, the two or more than two substances are combined together. So during mixing, the process is carried out in such a way that two or more than two substances are combined together. They are forced or they tend to randomize together in a one system. Okay. So we will start with the introduction, that is, it is defined as a process in which two or more components within a system are converted into one mass or a single mixture. Okay, so when the mixing procedure is carried out, the final result which is obtained is referred as mixture. Okay, because we have performed the procedure or the step, that is mixing. Okay, so generally in this process will tend to result in randomization of dissimilar particles within a system. इसमें क्या होता है कि dissimilar particles को हम randomize करते हैं, उसको force करते हैं, उसको tend करते हैं कि एक system में उसको together एक atmosphere में रहना है. मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको mix कर रहे हैं. Okay, so here during the mixing process you are going to heard or hear certain words, that is mix, blending and mixing and blending. Okay, so the term mix means to put together in a single mass, then the blending means to mix smoothly and inseparably together, and mixing and blending are commonly used interchangeable in the pharmaceutical industry. So this term correlate with each other. Okay, so this is the introductory part about mixing. Okay, so here the mixing operation in the dispensing practices are generally referred as the spatulation. जो आप लेबोरेटरी में करते हो, क्या करते हो, स्पैचुलेशंस करते हो. मतलब क्या, स्पैचुला के हेल्प से आप दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हो. देन ट्राइचुरेशन में क्या होता है कि मोटर पेसल यूज़ करके हम पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हुए दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं. मतलब क्या कि डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस में क्या होता है, स्पैचुलेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज मिक्सिंग. क्या स्पैचुलेशन करके मिक्सिंग कर सकते हैं, ट्राइचुरेशन करके मिक्सिंग कर सकते हैं. देन टम्बलिंग एक्शन. टम्बलिंग मीन्स व्हाट, कि सडन फॉल फ्रॉम द हायर स्पेस. ओके, हायर स्पेस से हम क्या करते हैं कि सडनली उस पार्टिकल को फॉल देते हैं नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरचेंज होते हैं दो पार्टिकल्स और रिजल्ट इन द मिक्सिंग. ओके, देन अगेन द ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन. सो दीज आर द डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस विच आर यूज्ड in the laboratory. Okay, so here, but in case of the pharmaceutical industry the mixing involves the large scale equipment. कि चलो अब स्मॉल स्केल पे करना है तो ट्राइचुरेशन करके, स्पैचुलेशन करके हम मिक्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं. बट लार्ज स्केल में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या सिनेरियो होता है, दैट इज इट विल इन्वॉल्व द लार्ज स्केल इक्विपमेंट. ओके, सो द मिक्सिंग can be done through the large scale equipments such as the double cone blender, twin shaped blender. You will study later. Okay, so here in this slide you are going to study about the ideal mixing and random mixing. Okay, so generally what is ideal mixing, that is you can see the diagram, that is perfect mixing is ideal mixing and next is the random mixing. Okay, so perfect mixing is that in which each particle of one material lies as nearly adjacent as possible to a particle of the other material. इसमें क्या हो रहा है कि in this case, in case of the ये हो गया आपका परफेक्ट मिक्सिंग. परफेक्ट मिक्सिंग में क्या हो रहा है, एक व्हाइट कलर का पार्टिकल है, उसके एडजेसेंट साइड उसके नेक्स्ट में एक ब्लैक कलर का है, फिर व्हाइट फिर ब्लैक. मतलब ये हो गया आपका परफेक्ट या आइडियल मिक्सिंग, या इस टाइप के मिक्सचर को आप बोल सकते हैं आइडियल या परफेक्ट मिक्सर. क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल, एक मटेरियल में का एक पार्टिकल दूसरे मटेरियल में के
दूसरे पार्टिकल के साइड में एडजेसेंट में प्रेजेंट है, जो कि आपको ऐसा मिक्सचर बना के दे रहा है. सो दिस इज रेफर्ड एज द आइडियल मिक्सिंग. नेक्स्ट इज द रैंडम मिक्सिंग. रैंडम मिक्सिंग इज नथिंग बट द फाइंडिंग द सेम proportions ऑफ कंपोनेंट इन द एंटायर मिक्सचर. इसमें क्या सेम मतलब क्या, ये पूरे स्क्वायर में जो आपको दिख रहा है नंबर ऑफ व्हाइट्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लैक्स होगा. ठीक है, मतलब क्या जितने व्हाइट पार्टिकल प्रेजेंट है उतने ही ब्लैक कलर के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इसमें, पर क्या रैंडमली. ऐसा प्रॉपर चेक्स या ऐसा प्रॉपर एडजेसेंट पार्टिकल्स आपको नहीं मिलेगी. इसमें क्या होगा, आपको रैंडम पार्टिकल्स मिलेंगे. सो दिस इज अबाउट द आइडियल मिक्सिंग एंड द रैंडम मिक्सिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट द मेन दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग, कि मिक्सिंग क्यों करना पड़ता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंश्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंपोजिशन बिटवीन द मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स. कि से फॉर एग्जांपल आप ग्रैन्यूल्स बना रहे हो टैबलेट कंप्रेस करने के पहले, तो टैबलेट कंप्रेस होने के बाद से फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग द पैरासीटामोल टैबलेट्स, तो पैरासीटामोल अकेला ही प्रेजेंट रहता है क्या टैबलेट में? नहीं. पैरासीटामोल ये एपीआई हो गया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया. इसके साथ और क्या प्रेजेंट रहेंगे, अलग से बाकी के एक्सिपिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि बाइंडर्स, डाइल्यूएंट्स, लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा, डिसइंटीग्रेंट्स. ओके, तो ये सब प्रेजेंट रहेंगे. मतलब क्या, इन सबको मिक्स करना है आपको पैरासीटामोल के साथ में. मतलब आपका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन अचीव करने के लिए प्रॉपर मिक्सिंग की ज़रूरत है. ओके, टू इनिशिएट और टू एनहांस द फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस, एग्जाम्पल डिफ्यूजन और डाइल्यूशन. ओके, प्रॉपर मिक्सिंग रही, सब नंबर ऑफ पोर्शन प्रॉपर रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोल्यूबलाइजेशन इजी होगा. सोल्यूबलाइजेशन इजी होगा तो डाइल्यूशन डिफ्यूजन आपका इजी होगा. मतलब क्या कि इनिशिएट और एनहांस द फिजिकल और केमिकल रिएक्शन को एनहांस करने के लिए, उनकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और या उनकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें मिक्सिंग करनी पड़ती है. दैट इज आइडियल और प्रॉपर मिक्सिंग. ओके, सो प्रॉपर मिक्सिंग लीड टू डिक्रीज द बैच साइकिल टाइम्स एंड ऑपरेशनल कॉस्ट. की पहले से ही अगर हमारा प्रॉपर मिक्सिंग हुआ है तो हम बैच साइकिल टाइम्स डिक्रीज कर सकते हैं, प्लस आपका प्रोसीजर इनएक्सपेंसिव होगा, जिसकी वजह से मतलब क्या होगा, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होगा. ओके, सो नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, कि कौन से टाइप्स के मिक्सचर्स हम अचीव कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज द पॉजिटिव मिक्सचर, निगेटिव मिक्सचर एंड द न्यूट्रल मिक्सचर. ओके, सो व्हाट इज पॉजिटिव मिक्सचर नाउ? In case of the positive mixture, the two or more than two miscible liquids are mixed or soluble solid is dissolved in water. Okay, इसमें क्या हो रहा है कि दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स. ओके, पॉजिटिव क्यों बोला है कि दोनों का एटमॉस्फेयर मिसिबल है, वो एक दूसरे में इजीली मिक्स हो सकते हैं, इसलिए उनको बोला है कि पॉजिटिव मिक्सचर. ओके, तो पॉजिटिव मिक्सचर में क्या हो रहा है, दो मिसिबल लिक्विड्स और दो मिसिबल सॉलिड डिजॉल्व्ड इन वाटर, द मिक्सचर्स आर कॉल्ड द पॉजिटिव मिक्सचर. जब दो, यहाँ पे सीधा पॉजिटिव बोले तो मिसिबल, आइदर वो सॉलिड हो सकते हैं दो या लिक्विड हो सकते हैं. ठीक है, सॉलिड रहेगा तो उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे. ओके, सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर रेफर्ड एज द पॉजिटिव मिक्सचर्स. ओके, सो दिस मिक्सचर्स do not present any problem during the mixing. Okay, so moreover the mixture formed is irreversible. ठीक है, एक बार ये मिक्सचर क्योंकि दोनों इजीली मिसिबल है तो वो क्या रहेंगे, इनसेपरेबल भी रहेंगे, उसको अलग से फिर से आप सेपरेट नहीं कर सकोगे. दैट्स वाई इट इज इरिवर्सिबल. ओके, सो द पॉजिटिव मिक्सचर्स आर, कौन से मिक्सचर है पॉजिटिव मिक्सचर, जिसमें दो मिसिबल सॉलिड्स या तो लिक्विड्स को हम कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं. देन नेक्स्ट आर द निगेटिव मिक्सचर्स. सो when two immiscible liquids are mixed or insoluble solids are mixed with water, it forms a negative mixture. मतलब क्या हो रहा है कि उनका नेचर इमिसिबल है, वो एक दूसरे में मिसिबल नहीं हो रहे हैं, डिजॉल्व नहीं हो रहा है वो, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, शेयर फोर्स अप्लाई करके, उसको फोर्सेस अप्लाई करके उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप एक सिस्टम में प्रेजेंट रहो. ठीक है, तो ये हो गए आपके निगेटिव मिक्सचर. मतलब उनका नेचर कैसे निगेटिव है, निगेटिव बोले तो इमिसिबल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप मिक्स हो जाओ, एक सिस्टम में प्रेजेंट रहो. ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड क्या होगा आपका निगेटिव मिक्सचर. एग्जाम्पल इज द इमल्शन. इमल्शन में क्या होता है, ऑयल फेज, वाटर फेज. अगर देखा जाए तो ऑयल फेज और वाटर फेज एक सिस्टम में प्रेजेंट रह सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप एक सिस्टम में प्रेजेंट रहो, आपको मिक्स होना ही है. मतलब दीज
type of mixtures are the negative mixture. So these mixtures formed is a reversible mixture. Positive mixture are irreversible क्योंकि वो miscible होते हैं, उनको वापस से अपनी जगह पे हम नहीं ला सकते हैं. लेकिन उसके अपोजिट नेगेटिव मिक्सचर क्या होते हैं? रिवर्सिबल मिक्सचर. ठीक है, मतलब वो दो फेजेस को मिक्स होने के बाद भी हम सेपरेट कर सकते हैं. देन लास्ट इज द न्यूट्रल मिक्सचर. ओके, सो इन केस ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर्स, these mixtures are static in their behavior. Okay, means the substances do not have the tendency to mix with each other immediately, but once mixed they do not separate after mixing. ठीक है, इनमें क्या टेंडेंसी होती है? आइडियली बेसिकली ये बिल्कुल मिक्स नहीं होते हैं, जनरली दे आर स्टैटिक इन बिहेवियर. ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या होगा कि दे डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू गेट मिक्सड विथ ईच अदर इमीडिएटली, बट if they are mixed then they are inseparable. उनको हम separate नहीं कर सकते. So these are called the neutral mixture. So these are the type of mixture, that is positive, negative and neutral mixtures. So next are the application of mixing, कि जो हम mixing कर रहे हैं उसका क्या क्या एप्लीकेशन है या तो कहाँ एप्लीकेशन. ओके, सो मिक्सिंग इज एन इंटरमीडिएट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डोजेस फॉर्म्स. ठीक है, सो हम जब मिक्सिंग करते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेज हो सकती है ड्यूरिंग सेवरल डोजेस फॉर्म्स. इंटरमीडिएट स्टेज बोले तो क्या कि वो फाइनल प्रोडक्ट अचीव करने से पहले कहीं तो बीच में मिक्सिंग एक स्टेप आएगी जिससे हम वो डोजेस फॉर्म को ज़्यादा इफिशिएंट बना सकते हैं. ओके, सो दैट इज द formulation during the formulation of tablet capsules. Okay, so dry mixing of materials for direct compression into tablets, dry mixing of powders and composite powder during capsules. Blending of powders are also important in the preparation of cosmetic products. Yes, because such as facial powders and dental powders. Then wet mixings in granulation of the tablet. So these are the some applications of the mixing. Okay, so generally mixing is useful during the production of pellets for capsules also. Okay, the dry blending of powders in capsules, dry syrups and compound powders. Okay, तो ये सब intermediate steps हो गए आपके जो आप डोजेस फॉर्म्स बनाते हो ना, जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स, ड्राई सिरप्स हो गए, पेलेट्स हो गए. इन सब के लिए, इन सब को अचीव करने के लिए हमारी इंटरमीडिएट स्टेप क्या होगी? मिक्सिंग. ओके, सो दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ मिक्सिंग. Then next is the difference between mixing, that is liquid mixing and solid mixing. Obviously liquid mixing में flow current important है. So during liquid mixing क्या होता है? Flow currents are responsible for transporting the unmixed material to the mixing zone. उसके opposite solid mixing में क्या बोलते हैं कि flow currents are not possible, कि कोई ज़रूरत ही नहीं है. क्यों? क्या होता है सॉलिड मिक्सिंग में कि इन दिस द टू और मोर सब्सटेंसेस आर इंटरमिंगल्ड बाय द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ पे पार्टिकल्स का ही मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे फ्लो का कोई ज़रूरत ही नहीं है, फ्लो करंट पॉसिबल ही नहीं है, जो कि लिक्विड मिक्सिंग में होता है. फर्स्ट डिफरेंस क्या है? लिक्विड मिक्सिंग फ्लो करंट इज रिस्पॉन्सिबल for mixing, and in solid mixing the movement of particle is responsible for the solid mixing, means flow current are not possible. Okay, next, true homogeneous liquid phase can be observed in the liquid mixing, but in the solid mixing the product often consists of two or more easily identifiable phases. Okay, कि solid mixing में हम दो प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर लिक्विड मिक्सिंग होमोजीनियस होता है तो इसमें हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि ये अपना ए वाला मिक्सचर था या बी वाला, जो कि हम फाइनल प्रोडक्ट को देख के वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ओके, सो ड्यूरिंग लिक्विड मिक्सिंग सैम्पल साइज इज स्मॉल. ओके, स्मॉल सैम्पल साइज इज सफिशिएंट टू स्टडी द डिग्री ऑफ मिक्सिंग, की इसका कितना इफेक्टिव मिक्सिंग हुआ है, इसके लिए स्मॉल सैम्पल इज sufficient. Okay, but here the large samples are required. In the liquid mixing requires low power so as compared to the solid, क्योंकि solid में ज़्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए. लार्जर पार्टिकल्स रहे तो कभी कभी ट्राइचुरेशन परफॉर्म करके उसकी पार्टिकल साइज रिड्यूस भी करनी पड़ती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा पावर लग रही इन केस ऑफ द सॉलिड मिक्सिंग. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग. Solid mixing doesn't require the flow current, while liquid mixing requires the flow current. In case of solid mixing the two phases can easily identifiable after mixing, but in liquid the homogeneous liquid phase is observed. Okay, large sample is required for the solid mixing
smaller size is required for liquid mixing. Okay, then for solid mixing the high power is required, and for liquid mixing low power is required. Okay, देन नेक्स्ट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मिक्सिंग. ठीक है, कि अब जो हम मिक्सिंग परफॉर्म कर रहे हैं उस मिक्सिंग को परफॉर्म करने के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नेचर ऑफ द सरफेस. ओके, सो वाइल परफॉर्मिंग द मिक्सिंग जनरली द नेचर ऑफ, अब जो हमें दो सरफेसेस को मिक्स करना है, ठीक है, तो जो दो सरफेसेस को मिक्स करना है उन दोनों का सरफेस हमें either if the rough surface of one component does not induce the satisfactory mixing. ठीक है, अगर एक कंपोनेंट का सरफेस आपका रफ रहा और दूसरे कंपोनेंट को जिसके साथ उसको मिक्स करना है उसका सरफेस स्मूथ रहा तो सेटिस्फैक्टरी मिक्सिंग अचीव नहीं करेंगे. ओके, वाई? बिकॉज ड्यू टू द एंट्री ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस इनटू पोर्स ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स. इससे क्या हो जाएगा कि जो रफ आपका कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का सरफेस जो आपका रफ है उसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स की एंट्री हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉपर मिक्सिंग अचीव नहीं होगा. मतलब इसके लिए क्या है, स्मूथ सरफेसेस आर रिक्वायर्ड टू अचीव द इफिशिएंट मिक्सिंग. ओके, नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स. डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स में क्या हो सकता है कि मतलब डी मिक्सिंग एक्सेलरेटेड व्हेन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉलर. ओके, जनरली क्या होता है कि अगर दो डिफरेंट डेंसिटी के पार्टिकल्स हो, एक स्मॉलर, एक कम डेंसिटी और एक हायर डेंसिटी के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर पार्टिकल्स हायर डेंसिटी के प्रेजेंट है मतलब क्या होगा, वो दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम, जिसके वजह से फाइनर क्या प्रेजेंट रहेंगे उसके टॉप पे और आपके हायर पार्टिकल बॉटम में जाके सेटल हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी. तो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए क्या होगा, क्या चाहिए आपको कि दोनों पार्टिकल्स की डेंसिटी नियर बाय होनी चाहिए. ओके, मीन्स डी मिक्सिंग इज एक्सेलरेटेड व्हेन द डेंसिटी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल इज हायर और व्हेन द मिक्सिंग प्रोसेस इज स्टॉप्ड एब्रप्टली. ओके, सो दिस इज ड्यू टू क्या कि द डेंस मटेरियल ऑलवेज मूव्स डाउनवर्ड्स एंड सेटल एट द बॉटम. डेंस मटेरियल क्या हो जाएंगे, डाउनवर्ड चले जाएंगे और बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे. उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर मिक्सिंग आपकी अचीव नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट इज द पार्टिकल साइज. अगेन वही कि हायर पार्टिकल, ज़्यादा लार्जर पार्टिकल, बड़े पार्टिकल रहेंगे, साइज पार्टिकल की बड़ी रहेंगी तो वो जाके बॉटम में बैठेंगे. ओके, सो इट इज़ ईजी टू मिक्स टू पाउडर्स हैविंग द सेम पार्टिकल साइज. की पार्टिकल साइज, आइडियल पार्टिकल साइज कौन सी होनी चाहिए, दोनों पाउडर जिसको आपको मिक्स करना है उसकी पार्टिकल साइज सिमिलर होनी चाहिए. ओके, सो इफ द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल साइज observed then it can lead to separation. Okay, because the smaller particles move downward through the spaces between the bigger particles. ठीक है, कि अब चलो बिगर पार्टिकल का सेट लगा है तो स्मॉलर पार्टिकल क्या करेंगे, उसके बीच में स्पेसेस में से जाके बैठ जाएंगे कहीं तो. ठीक है, तो जिसके वजह से आइडियल मिक्सिंग आपका नहीं होगा. तो आइडियल मिक्सिंग के लिए कैसी पार्टिकल साइज चाहिए आपको, इक्वल या नियर बाय, क्लोजर टू द अनदर one. Okay, next is the particle shape. Okay, so generally the ideal particle shape for the efficient mixing is nothing but spherical. Okay, the ideal particle is spherical in shape for the purpose of uniform mixing. अगर हमें uniform mixing achieve करनी है तो ideal particle shape कौन सा रहना चाहिए आपका, spherical. Okay, the irregular shapes can become the interlocked. Okay, अगर आपके शेप इरेगुलर रहे तो वो आपस में ही इंटरलॉक हो जाएंगे एंड देर आर लेस चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स वन दीज आर मिक्स टुगेदर. तो उसके वजह से उसके बाद हम उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे. ओके, तो आइडियल पार्टिकल शेप इज द स्पेरिकल वन. देन पार्टिकल चार्ज. सो सर्टन पार्टिकल्स विल एक्सर्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंजेस और चार्जेस ऑन देम. क्या होता है कि सर्टन पार्टिकल विल पजेस और विल एक्सर्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि उन पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं. तो उस वजह से दिस कैन लीड टू सेपरेशन और द सेग्रीगेशन. इन चार्जेस के वजह से ऐसे अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हो गए तो उस वजह से क्या होगा कि आपका मिक्सिंग तो यूनिफॉर्म नहीं आएगा, लेकिन अगर हो गया आपका मिक्सिंग तो सेपरेशन के या सेग्रीगेशन के ज़्यादा चांसेस है. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल. प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल में क्या होगा कि आइडियली सेम प्रोपोर्शन में अगर दो मटेरियल रहे, इक्वल प्रोपोर्शन में रहे तो आपका
मिक्सिंग प्रॉपर अचीव होगा. ओके, सो द बेस्ट रिजल्ट कैन ऑब्टेन इफ द टू पाउडर्स आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय वेट और बाय वॉल्यूम. ठीक है, अगर सॉलिड प्रेजेंट है तो बाय वेट में सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए, लिक्विड प्रेजेंट है तो बाय वॉल्यूम में आपका सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए. ओके, विस्कोसिटी अगेन, विस्कोसिटी भी आपकी सिमिलर होनी चाहिए, विस्कोसिटी. ओके, देन मिक्सर वॉल्यूम, मिक्सर वॉल्यूम भी सिमिलर होना चाहिए आपका. ओके, so these are the factors influencing the mixing or rate of mixing. Okay, then classification of mixing. So dependent on the state of your material कि solid है, liquid है, immiscible liquid है या semi solid है, the mixing are classified. Okay, so first is the mixing of solid, then mixing of liquid, immiscible liquids, and lastly the mixing of semi solid. We will see it one by one. We will start with the mixing of solids. Okay, then mixing of solids. Okay, so generally why mixing of solid is important, because during in pharmaceutical industry, during the manufacturing of tablets, granules. Okay, so if the drug is potent, potent means what, active और इफेक्टिव इफिशिएंट इन द लो डोजेस. ओके, तो चलो जिसका डोज आपका 25 mg या 30 mg है, जैसे कि पैरासीटामोल का एग्जांपल, आपको पैरासीटामोल का डोज कितना है 500 mg. ठीक है, मतलब ड्रग ही पैरासीटामोल का बल्क में प्रेजेंट है, बट अगर कोई दूसरा ड्रग है जिसका डोज आपको 30 mg है तो उसका बल्क आपको बढ़ाना पड़ेगा. तो उसके लिए आप डाइल्यूएंट्स ऐड करोगे, बाइंडर्स ऐड करोगे, डिसइंटीग्रेंट्स ऐड करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये आपके एक्सिपिएंट्स हो गए. ठीक है, तो इन सब एक्सिपिएंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव मिक्सिंग आपको अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, तो उस वजह से मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो इन मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट्स और ग्रैन्यूल्स normally a number of additives are added, so therefore mixing of powder become essential part of this process. क्या कि मैन्युफैक्चरिंग और ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल, in this the mixing is the essential part. Okay, so mixing is considered as critical factor especially in case of the potent drugs and low dose drugs where the high amounts of adjuvants are added. कि डोज का बल्क बढ़ाने के लिए अगर पोटेंट ड्रग रहा है जो कि कम डोज में ही ज़्यादा एक्टिविटी, थेरापेटिक एक्शन उसका शो करेगा, तो उसके लिए हमको बल्क बढ़ाने के लिए ज़्यादा एडजुएंट्स, ज़्यादा एक्सिपिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत है. उसमें मिक्सिंग आपकी यूनिफॉर्म और प्रॉपर आइडियल मिक्सिंग होनी चाहिए. ओके, सो जनरली द पाउडर्स और द सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दैट इज कोहेसिव एंड द नॉन कोहेसिव. ओके, सो जनरली the cohesive solids are there and the non-cohesive solids are there. Okay, so non-cohesive solids means what, they can flow easily. Okay, without adhering. Then next is the mechanism of mixing of solids. Okay, so the mechanism of mixing of solids means they can work in the three ways. First one is the connective mixing. This connective mixing is also referred as the macro mixing. Then next is the shear mixing, and last is the diffusive mixing, or it is referred as the micro mixing. Okay, so generally what actually happens in the connective mixing, so it is achieved by the inversion of powder bed using either blades or paddles or the screw element. कि चलो आपको अगर मैकेनिज्म याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे आप, कनेक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ पाउडर बेड. जो पाउडर बेड प्रेजेंट है उनका इन्वर्जन होता है, तो वो फॉलो हो, अगर इन्वर्जन फॉलो हुआ प्रिंसिपल किसी मिक्सर में या किसी मिक्सिंग इक्विपमेंट में, मतलब वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, कनेक्टिव मिक्सिंग. ओके, तो कनेक्टिव मिक्सिंग मतलब इन्वर्जन ऑफ पाउडर बेड कैन बी अप्लाइड और कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग द blades, paddles or the screw elements. Okay, so a large mass of material moves from one part to another, that is convective mixing is referred as a मैक्रो मिक्सिंग. इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ पाउडर बेड होता है. ये आपके लिए हाईलाइटेड है कि क्या, इन्वर्जन ऑफ पाउडर बेड यूजिंग पैडल्स और स्क्रूज. ओके, तो इसमें क्या होता है, लार्ज मास की ज़्यादा मास
पाउडर का मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनादर, वन पार्ट टू अनादर मूवमेंट होगा, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है आपका मिक्सिंग, पर कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करके, कन्वेक्टिव मिक्सिंग। ओके, नेक्स्ट इज द शेयर मिक्सिंग। तो शेयर मिक्सिंग में क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ब्रोकन। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रोकन हो गया, मतलब क्या, कौन से पाउडर जाके सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। ओके, सो that each particle moves on its own between the regions of different composition and parallel to their surfaces. Okay, तो इसमें क्या होता है, shear mixing में generally the shear is generated, मतलब क्या कि unaligned forces are generated, जिसमें क्या होता है कि one part of the body of a particular particle is pushed. ओके, एक पार्टिकल को हम पुश करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और दूसरे पार्टिकल को फिर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि पहले अलग अलग हम इनको मूवमेंट दे रहे हैं, फिर रिकम्बाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, शेयर फोर्स इज अप्लाइड। ओके, सो इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ब्रोकन डाउन सो दैट ईच पार्टिकल मूव्स on its own between the region of different components and either parallel to the surfaces. Okay, so इसमें shear forces reduce these attractions and reduce the scale of segregation. मतलब यहाँ पे मिक्सिंग करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पैरामीटर खड़ा हो रहा है यहाँ पे मिक्सिंग अचीव करने के लिए, दैट इज नथिंग बट द shear forces. shear forces क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो रिड्यूस होगा, it will reduce these attractions and reduces the scale of segregation also. segregates भी नहीं होने देंगे पार्टिकल में, जिससे क्या हो रहा है, आपको यूनिफॉर्म मिक्सिंग मिलेगा। ओके, लास्ट इज द डिफ्यूजन मिक्सिंग और माइक्रो मिक्सिंग। सो दिस इन्वॉल्व्स द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स विद इन द पाउडर बेड, देयर बाय पार्टिकल्स चेंज देयर पोजिशन रिलेटिव टू वन अनदर। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है सीधा सीधा रैंडम मोशन में, ठीक है, जिसके वजह से पार्टिकल्स इधर उधर मूव करेंगे और उसके वजह से क्या होगा, आइडियल मिक्सिंग होगी। ओके, सो डिफ्यूजिव मिक्सिंग ऑकर्स एट द इंटरफेसेस ऑफ द डिसिमिलर रीजन्स। ओके, कि इंटरफेसेस बीच में, इंटरफेसेस पे ये डिफ्यूजिव मिक्सिंग होगा, किसके इंटरफेसेस पे होगा, डिसिमिलर रीजन्स के। ओके, सो दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज द माइक्रो mixing. Convective mixing, it is also referred as macro mixing, in which inversion of powder bed is achieved using the blade or paddles or the screw elements. Okay, shear mixing में क्या हो रहा है, shear forces are applied, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, it will reduce the attraction between the particles and thus reduce the segregation of the particles and gives you the effective or uniform mixing. Lastly, diffusive mixing में क्या हो रहा है कि it involves the random motion of the particles with the powder within the powder bed, जिसकी वजह से क्या हो गया, the particles will change their position relative to one another. Okay, so the diffusive mixing will occur between the interfaces of the dissimilar particles. Okay, and this is also referred as the micro mixing. Now next is the mixing processes in case of the solid mixing. अब ये जो हम पढ़ रहे हैं कौन से मिक्सिंग के इसमें पढ़ रहे हैं, दैट इज द सॉलिड मिक्सिंग. ओके, सो जनरली द सॉलिड मिक्सिंग इन्वॉल्व्स द 4 स्टेप. फर्स्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ बेड ऑफ सॉलिड्स, कि पहले जो मिक्सिंग बेड है जिसको हमें जिस मटेरियल को हमें मिक्स करना है दैट विल एक्सपांडेड इनटू द मिक्सर जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं. ओके, देन आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ 3 डायमेंशनल shear force to the powder bed. this is important for the movement of particle, जिससे हमें आइदर टम्बलिंग होगा. तो ये सब हम अचीव कैसे कर सकते हैं, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द shear forces. पहले पाउडर बेड को एक्सपांड कर दिया, उसके बाद क्या हो रहा है, हम एप्लीकेशन वी आर अप्लाइंग द 3 डायमेंशनल shear forces. Okay, then मिक्स लॉन्ग इनफ टू परमिट द ट्रू रैंडमाइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स, कि हमें इतने टाइम तक उसको मिक्स करना है कि जिसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें ट्रू रैंडमाइजेशन, प्रॉपर रैंडम फेज में हमें पार्टिकल्स मिलेंगे, उतना हमें उसको मिक्स करना है. ओके, देन लास्ट इज द मेंटेन द रैंडमाइजेशन. मीन्स रैंडमाइजेशन मतलब क्या, नो सेग्रीगेशन आफ्टर मिक्सिंग, की ऐसा हमें रैंडमाइजेशन को मेंटेन करना है कि बाद में मिक्सिंग होने के बाद कोई भी सेग्रीगेशन हमें नहीं मिलना चाहिए. ओके, सो जनरली व्हेन द ड्राई मटेरियल्स आर लोडेड इनटू अ मिक्सर दे विल फॉर्म अ स्टैटिक बेड. ठीक है, मतलब
जो स्टैटिक बेड फॉर्म करेगा जब हम मिक्सर में आपका पाउडर अप्लाई करेंगे. ओके, सो दिस बेड विल एक्सपांड सफिशिएंटली व्हेन मिक्सिंग इज इनिशिएटेड. जब हमारा मिक्सिंग इनिशिएट हो जाएगा, सो फर्स्ट स्टेप हमारी फॉलो होगी, दैट इज एक्सपांशन ऑफ योर सॉलिड बेड्स. ओके, सो therefore there should be a enough void space in the mixer after it is charged with the ingredients. ठीक है, void spaces बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि void space रहेगी, कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, void space होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें मूवमेंट करना है पार्टिकल्स के आपस में, उसके वजह से void space is important. Okay, so then the shear force produce the movement of particles and this will accompanied by the expansion of powder bed. Okay, so the stress induces the movement of particle in three directions. जो हमने बोला है सेकेंड स्टेप में कि क्या कर रहे हैं हम, अप्लीकेशन ऑफ द थ्री डायमेंशनल शेयर फोर्सेस की शेयर फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा, फिर पाउडर बेड एक्सपांड होगा, उसके बाद the stress induces the movement of particles in the three directions. Okay, so these turbulent movements of particles can achieve the randomization. कि ये जो turbulent movement मिला है आपको, ये जो आपको shear force मिला है, इसके वजह से क्या होगा, आपका मूवमेंट पकड़ेगी आपके पार्टिकल्स और जिसके वजह से आपका रैंडमाइजेशन अचीव होगा. ओके, सो द फोर्सेस आर इनएडिक्वेट, particle agglomerates will move towards the will lead to the पुअर मिक्सिंग. ठीक है, अगर आपका फोर्स इनएडिक्वेट रहा, शेयर फोर्स आपका प्रॉपर अप्लाई नहीं हुआ, तो आपका इम्प्रॉपर मिक्सिंग आपका अचीव हो सकता है. ओके, सो दैट्स वाई यू हैव टू कैरी आउट द प्रॉपर मिक्सिंग. मतलब उसके लिए क्या, शेयर फोर्स एडिक्वेट ऑप्टिमम होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द मिक्सिंग स्टेप्स. देन नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ मिक्सिंग. सो दैट इज यू कैन सी इन डायग्राम, दैट इज आइडियल और परफेक्ट मिक्सिंग में क्या है, ए जो ऑरेंज कलर में प्रेजेंट है, उसके बाद बी जो ब्लू कलर में प्रेजेंट है. ओके, तो ए बी ऐसे पार्टिकल है जो कि परफेक्टली एडजेसेंट साइड में एक दूसरे के प्रेजेंट है. मतलब ये हो गया, ऐसा अगर डायग्राम आया तो ये हो गया आपका परफेक्ट मिक्सिंग. ओके, देन नेक्स्ट इज द, एक तो आपका आइडियल मिक्सिंग हो गया. देन नेक्स्ट इज द एक्सेप्टेबल मिक्सिंग की ठीक है चलो आइडियल मिक्सिंग हम 100 में से 100 टाइम्स अचीव नहीं कर सकते हैं, तो उसके वजह से हम क्या, एक दूसरा मिक्सिंग का पैटर्न बना लेंगे, दैट इज द एक्सेप्टेबल मिक्सिंग. की चलो आइडियल मिक्सिंग परफेक्ट मिक्सिंग अचीव नहीं हुआ तो एक्सेप्टेबल मिक्सिंग तो हम अचीव कर सकते हैं. ओके, सो सिंस मीन्स द perfect mixing cannot be achieved, so that's why the other alternatives for obtaining the acceptable mix must be considered. So it will involve the random mixing, जो कि हमने पहले इसमें पढ़ा था. random mixing मतलब क्या, कि आपका प्रपोर्शन इक्वल होना चाहिए, मतलब जितने ब्लू प्रेजेंट है उतने ऑरेंज प्रेजेंट है इक्वल प्रपोर्शन में, तो वो हो गया आपका रैंडम मिक्सिंग. देन नेक्स्ट इज द ऑर्डर्ड मिक्सिंग. ऑर्डर्ड मिक्सिंग में क्या, प्रॉपर ऑर्डर्ड यूनिट हम सेट कर सकते हैं कि इतने ऑर्डर है, इतने ये ऑर्डर में इतने इतने यूनिट्स है, उन यूनिट्स को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर बाद में उन यूनिट को हम रिकम्बाइन करेंगे. सो दैट इज नथिंग बट द ऑर्डर्ड मिक्सिंग. ओके, so ordered mixing is classified into three types, that is mechanical means of ordered mixing, then adhesion means of ordered mixing, and last is the coating means of ordered mixing. Okay, we will see it one by one. So first is the mechanical means of ordered mixing. Okay, so here in this mechanical means of ordered mixing, the mass of each ingredient is divided and recombined a number of times in the powdered bed. मतलब आपका एक powdered bed रहेगा जिसमें देखो इसमें क्या प्रेजेंट है, ये powdered bed हो गया डिवाइड 1, ए अलग से किया बी अलग से किया, फिर से आपका ए बी आपने ऐड किया. ठीक है, दूसरा पोर्शन क्या है, ए बी, फिर से आपने क्या किया, A1 B1 A2 B2 ऐसे करके ये हो गया आपका पहला कॉम्बिनेशन, ये हो गया आपका दूसरा. ठीक है, अब लास्ट थर्ड डिवीजन में आपने क्या किया, A1 B1 A2 B2 को फिर से A1A B1A B2B ऐसे आपने सेपरेट किया. मतलब क्या हो रहा है इसमें, मैकेनिकल मीन्स कैसे अचीव कर रहे हैं आप, कि पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के मास को आप पहले डिवाइड कर रहे हो, उसको रिकम्बाइन कर रहे हो. ऐसा ये प्रोसीजर नंबर ऑफ टाइम्स होगा. क्यों, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म और इफेक्टिव मिक्सिंग अचीव करना है. सो दिस इज नथिंग बट द मैकेनिकल मीन्स ऑफ ऑर्डर्ड मिक्सिंग, जिसमें क्या होता है कि मास ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज डिवाइडेड एंड रिकम्बाइंड फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, देन नेक्स्ट इज द अडेजन. अडेजन इज वेरी सिंपल प्रोसीजर. ओके, इसमें आपके ये थोड़े कम पार्टिकल साइज
के मटेरियल प्रेजेंट है, ये थोड़ा बड़ा ज़्यादा पार्टिकल, तो क्या होगा कि जो लार्जर पार्टिकल्स है उस पे जाके आपके स्मॉलर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अडेयर करेंगे, उस पर स्टिक हो जाएंगे. सो दिस इज नथिंग बट द अनदर वे ऑफ मिक्सिंग, दैट इज अडेजन. ओके, अडेजन में क्या हो रहा है कि पहले आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उस पे जाके आपके दूसरे पार्टिकल्स जाके स्टिक हो जा रहे हैं. ओके, सो दीज फोर्सेस ऑफ पार्टिकल्स मे क्रिएट द ऑर्डर्ड यूनिट्स ऑफ नियरली आइडेंटिकल कंपोजिशन. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस की कौन सी प्रोसेस प्रेजेंट है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द adhesion, that is partial solubilization or the use of binding agents during the wet granulation will show the same effect like adhesion. कि जब हम wet granulation present परफॉर्म करते हैं और उसमें जो हम बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं, बाइंडिंग एजेंट जाके क्या करता है, होल्ड करता है, स्टिक करता है, अडेयर करता है. सो दिस इज द सेम मैकेनिज्म लाइक द बाइंडिंग एजेंट विच इज यूज ड्यूरिंग द वेट ग्रेन्युलेशन. ठीक है, ये डायग्राम आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे पार्टिकल्स बड़े लार्जर पार्टिकल्स के सरफेस पे जाके अडेयर हो रहे हैं, मतलब दीज आर द मिक्सिंग यूनिट्स. की पहले इनको ऑर्डर्ड फॉर्म में करो, एक यूनिट बना दो, फिर फाइनली उसका मिक्सिंग अचीव करो. ओके, लास्ट इज द कोटिंग. कोटिंग मीन्स क्या कि अनदर लेयर इज सराउंडेड, कि बाहर से पार्टिकल्स के दूसरे अनदर लेयर इज सराउंडेड एंड फाइनली द मिक्सिंग इज achieved. Okay, so this is nothing but the coating. Now next are the equipments which are used for the solid mixing. Okay, so what is the criteria for the equipments used for the solid mixing, that is the mixer should have sufficient space for mixing, उसकी स्पेस सफिशिएंट होनी चाहिए. ओके, उसके बाद द पाउडर शुड नॉट बी फील मोर देन 60%. ओके, कि पाउडर ज़्यादा फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो इक्विपमेंट में ज़्यादा पाउडर फील करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्लॉग हो सकता है, या आपके पाउडर को टम्बल करने के लिए, उसको मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी. ठीक है, सो नॉट दैट देन 60% पाउडर शुड बी फील. ओके, देन shearing फोर्स शुड बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन, क्योंकि अगर shearing फोर्स कम होगा तो सेग्रीगेशन हो सकता है, और shearing फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स क्या होगा, उसका साइज रिडक्शन भी परफॉर्म हो सकता है. ज़्यादा पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं. ऑप्टिमम shearing फोर्स इज रिक्वायर्ड. देयर शुड बी नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देन फोर्स should not cause the breakage to the particles. Okay, means force should be optimum. The mixing process should be stopped abruptly. Okay, then classification of the equipments for solid mixing. So it is based on the flow properties. की based on the flow properties में क्या होगा, free flowing solids, जो कि क्या होगा, नॉन कोहेसिव सॉलिड्स है. नॉन कोहेसिव सॉलिड्स आर फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स, की इजीली फ्लो हो सकते. कोहेसिव सॉलिड्स मतलब क्या कि वो स्टिक होंगे, अडेयर करेंगे. ओके, सो फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स एक कैटेगरी है जिसमें हम पढ़ेंगे वीक कोन ब्लेंडर एंड डबल कोन ब्लेंडर. देन कोहेसिव सॉलिड्स में सिग्मा ब्लेंडर एंड प्लानिटरी मिक्सचर. सो नेक्स्ट आर द बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ मिक्सिंग, की स्मॉल स्केल पे करना है आपको या लार्ज स्केल पे करना है. ठीक है, बैच टाइप मतलब स्मॉल स्केल के लिए मॉर्टर, पेसल, वी कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर एक्सेट्रा, एंड कंटिन्यूस टाइप मतलब लार्ज स्केल में बैरल टाइप या जिगजैग टाइप मिक्सर्स. ओके, सो जनरली दीज सॉलिड मिक्सिंग इक्विपमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज, जिसमें रहेगी कि फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स, कोहेसिव सॉलिड्स, और बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ मिक्सिंग मतलब स्मॉल स्केल के लिए कौन से मिक्सर्स यूज कर सकते हो और लार्ज स्केल के लिए. सो वी विल स्टडी टुडे द फ्री फ्लोइंग इक्विपमेंट्स फॉर द सॉलिड मिक्सिंग, दैट इज डबल कोन ब्लेंडर एंड वी कोन ब्लेंडर. ओके, सो मेथड्स फॉर द solid mixing, that is generally the powders may be mixed by following methods, that is spatulation, trituration and tumbling. Spatulation में क्या होता है, by the use of spatula you can mix 2 or more ingredients. Okay, trituration में by applying the pressure. ठीक है, चलो ट्राइचुरेशन आप कर रहे हो मोटर पेसल में. ठीक है, तो साइज रिडक्शन भी करते हो, मतलब आप प्रेशर जनरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पाउडर मटेरियल का साइज रिड्यूस हो रहा है, प्लस 2 फेजेस को हम मिक्स भी कर सकते हैं. लास्ट इज द टम्बलिंग. टम्बलिंग मतलब क्या कि सडन एक हाइट से आपके पार्टिकल्स को ऑफ फोर्स कर रहे हैं कि आप फॉल डाउन करो और दूसरे पार्टिकल्स से जाके मिक्स करो. सो दिस इज नथिंग बट द टम्बलिंग एक्शन. ओके, सो स्पैचुलेशन मीन्स द combining of material into homogeneous mixture by continuous heaping them together or smoothing the mass with the help of spatula, that is nothing but the spatulation. Then trituration means the
it is the pharmaceutical process in which the particle size of powders through a mortar or pestle to produce the fine powders. Okay, so इसमें क्या होता है, आप क्या करोगे, mortar pestle के यूज से ट्राइचुरेशन कर सकते हो. द लास्ट इज द टम्बलिंग, अ प्रोसेस ऑफ रबिंग, grinding or the pulverizing a powder to create the fine particles. So this is nothing but the tumbling action. Means ये 3 actions को follow करके आप solid mixing achieve कर सकते हो. वो हो गया spatulation, trituration या फिर आपका tumbling action. Okay, now we will start with the equipments which are used for ideal mixing. So first we will study about the double cone blender. Okay, so the diagram itself says that डबल कोन ब्लेंडर में क्या हो रहा है, 2 कोन प्रेजेंट है. ठीक है, ये अपर पोर्शन में 1 कोन प्रेजेंट है, लोअर पोर्शन में आपका 1 कोन प्रेजेंट. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज द डबल कोन ब्लेंडर बिकॉज 2 कोन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लेंडर. ओके, सो द मिक्सिंग ऑकर्स ड्यू टू द टम्बलिंग मोशन. टम्बलिंग मोशन आता है, सडन फॉल होता है पार्टिकल का, आइदर पल्वराइजेशन होगा, ग्राइंडिंग होगा और रबिंग होगा पार्टिकल का. ठीक है, सो प्रिंसिपल क्या है इसका, टम्बलिंग मोशन. Then what is the construction of your double cone blender? That is all parts of equipments including the mixing tanks blades are made up of stainless steel. Okay, so the equipment consists of 2 cones joined as a cylindrical section which are rotated about an axis on the shaft. So this is the shaft जो कि जिस पे माउंट किया है आपका डबल कोन ब्लेंडर एंड इट विल रिवॉल्व अराउंड इट्स एक्सिस. ओके, सो द कोनिकल शेप एट द बोथ द एंड्स अलाउज द यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड इजी टू डिस्चार्ज. यहाँ से आप मटेरियल फीड कर सकते हो, मटेरियल डिस्चार्ज भी कर सकते हो. ओके, मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, 2 कोन्स आर प्रेजेंट, ऑल द इक्विपमेंट्स जो भी जितने भी पार्ट्स है आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. ओके, इट इज माउंटेड ऑन द shaft and here the 2 leads are present for the feeding the sample, feeding the material as well as for discharging them. Okay, then procedure. The powder is filled up to 2/3 of the volume of the blender to ensure the proper mixing. पहले ही क्राइटेरिया में क्या पढ़ा था हमने कि 60% तक आप मटेरियल आपका फीड कर सकते हो इन द मिक्सिंग इक्विपमेंट्स. तो यहाँ पे 2/3 वॉल्यूम आपको फिल करना है. देन द रेट ऑफ रोटेशन शुड बी 30 to 100 रोटेशंस पर मिनट. इन डबल कोन ब्लेंडर में क्या होता है, 30 से 100 आरपीएम आप रोटेशन देते हो. ओके, ऑन रोटेटिंग मिक्सिंग ऑकर ड्यू टू द टम्बलिंग मोशन. अब क्या करोगे आप, ये खुद के एक्सिस पे रोटेट हो रहा मतलब यहाँ से जो पार्टिकल है रोटेट होने के बाद सडन यहाँ पे फॉल करेंगे या वाइस वर्सा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है यहाँ पे फॉल करेंगे. मतलब कौन सा एक्शन मिल रहा है उसको, टम्बलिंग मोशन या टम्बलिंग एक्शन. ओके, सो द प्रोडक्ट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इक्विपमेंट. की टम्बलिंग एक्शन होने के बाद से फॉर एग्जाम्पल करके बता रही हूँ मैं कि 20 मिनट्स तक आपको उसको टम्बल करना है या मिक्स करना है. तो 20 मिनट्स तक आपकी मशीन चलेगी, 20 मिनट्स तक वो खुद के एक्सिस पे रोटेट होगा. दैट इज 30 to 100 आरपीएम. ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका टम्बलिंग मोशन मिलेगा जिसकी वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे. उसके बाद आप आपका प्रोडक्ट डिस्चार्ज कर सकते हो. ओके, द मिक्सिंग टैंक कैन बी स्लैंटेड फ्रीली एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री to 360 डिग्रीज फॉर डिस्चार्जिंग एंड क्लीनिंग पर्पजेस. कि आपको डिस्चार्ज करना है या क्लीन करना है, आप वो आपके मिक्सिंग टैंक को स्लैंट कर सकते हो. दैट इज एट 0 to 360 डिग्री. Then advantages, that is it is easy to maintain and clean. There are no chances of clogging of materials into corners. क्योंकि क्या है, कोन प्रेजेंट है, बेस उसका कोनिकल है, उस वजह से क्लॉगिंग नहीं होगा पार्टिकल्स का. लार्ज अमाउंट कैन बी हैंडल्ड इजीली, बड़ा होने की वजह से, ज़्यादा स्पेस होने की वजह से. इट इज़ इफिशिएंट फॉर मिक्सिंग पाउडर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज. ओके, वियर ऑन इक्विपमेंट इज लिटिल बिकॉज इट इज मेड अप फ्रॉम स्टेनलेस स्टील. तो वियरिंग टीयरिंग नहीं होगा. ओके, डिसएडवांटेजेस, नॉट सुटेबल फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स, नॉट सुटेबल फॉर पार्टिकल्स विथ ग्रेटर पार्टिकल साइज डिफरेंस. ओके, ड्यू टू लेस शेयर. इसमें लेस शेयर प्रोड्यूस होता है. तो अगर दो मटेरियल को आपको मिक्स करना है जिसकी पार्टिकल साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे कि क्या, कोर्स पार्टिकल और वेरी फाइन पार्टिकल, ऐसे, तो उसको वो ज़्यादा इफिशिएंटली मिक्स नहीं होंगे इन दिस डबल कोन ब्लेंडर. ओके, देन द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ द डबल कोन ब्लेंडर. कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स. ओके, देन ड्राई मिक्सिंग कर सकते हैं आप टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्मुलेशन के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी. एंड देन इट इज़
यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल, फूड, केमिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्शन करने के लिए यूज होता है. सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द डबल कोन ब्लेंडर. ओके, डबल कोन ब्लेंडर में क्या होता है, दो कोन्स प्रेजेंट है जो कि एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पे माउंट किए जाते हैं, वो खुद के ही एक्सिस पे रोटेट होते हैं, अबाउट 30 to 100 RPM पे रोटेट होते हैं और टम्बलिंग मोशन, टम्बलिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द ट्विन शेल ब्लेंडर एंड विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज वी कोन ब्लेंडर, क्योंकि वी कोन में प्रेजेंट है, वी शेप में प्रेजेंट है. ओके, सो अगेन इट इज बेस्ड ऑन द टम्बलिंग एक्शन. सिमिलरली सेम प्रिंसिपल है, टम्बलिंग मोशन पे बेस्ड है. ये भी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पे माउंट किया हुआ है. यहाँ से आपका फीड इनलेट रहेगा, फीड आप यहाँ पे एंट्री करोगे. पहले क्या होता है कि दो पोर्शन में वो डिवाइड हो जाता है आपका पाउडर, टम्बलिंग एक्शन मिलने के बाद फिर अगेन कंबाइन होता है. ठीक है, यहाँ पे कंबाइन होगा, उसके बाद जब ये खुद के ही एक्सिस पे रोटेट करेगा फिर आपको टम्बलिंग मोमेंट मिलेगा और आपका रिकम्बाइन होगा, विच विल रिजल्ट इन द यूनिफॉर्म मिक्सिंग. ओके, देन कंस्ट्रक्शन. It consists of a totally enclosed V-shaped vessel which prevent any foreign particle to enter into the chamber. उसमें क्या प्रेजेंट है, V cone, V-shaped आपका वेसल प्रेजेंट है. It is made up from either stainless steel or transparent plastic. Okay, it consists of a horizontal shaft. उस पे क्या प्रेजेंट है, आपका V cone ब्लेंडर आपका माउंट किया है. ओके, सो अ चार्जिंग मटेरियल. हॉरिजॉन्टल शाफ्ट किसके लिए, इट कंसिस्ट अ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट rotated about an axis causing the particles within the mixer to tumble over each other onto the mixer surfaces. कि आपका रोटेटिंग शाफ्ट या हॉरिजॉन्टल शाफ्ट एक तो रोटेटिंग रहेगा जिसकी वजह से आपका वी कोन ब्लेंडर रोटेट करेगा, और ये किस चीज़ के लिए प्रेजेंट है कि आपके पार्टिकल्स को मूवमेंट मिले, टम्बलिंग एक्शन मिले, जिसकी वजह से वो इंटरचेंजेबल हो सके. ओके, द चार्जिंग ऑफ मटेरियल इनटू वी कोन ब्लेंडर इज थ्रू आइदर द टू एंड्स. जो दो एंड है, दो वी के पोर्शन प्रेजेंट है, उसमें से चार्ज हो सकते हैं, फीड कर सकते हैं आप मटेरियल को. ओके, सो बैचेस फ्रॉम 20 kgs टू 1 ton कैन बी लोडेड फॉर मिक्सिंग. ओके, डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ इक्विपमेंट. ज़्यादा ज़रूरत रही तो इक्विपमेंट आपका वी कोन का साइज भी आप बढ़ा सकते हो. ओके, देन वर्किंग. The material to be blended is loaded approximately 50 to 60% of its total volume. Then as the blender rotates and V is inverted. ठीक है, ब्लेंडर जैसे ही रोटेट होता है और आपका V शेप जैसे इन्वर्ट होता है, द मटेरियल स्प्लिट्स इनटू टू पोर्शन. दो V में फंस जाएंगे मटेरियल. ओके, दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एंड रिकम्बाइनिंग कंटिन्यूसली यील्ड्स द ऑर्डर्ड मिक्सिंग बाय मैकेनिकल मीन्स. ठीक है, अब इस पे कौन से टाइप का ऑर्डर्ड मिक्सिंग उसने फॉलो किया है, कौन से टाइप का किया है, मैकेनिकल मीन्स का. क्यों, मैकेनिकल मीन्स में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा ऑर्डर्ड यूनिट को हम डिवाइड करते हैं पहले, बाद में उसको रिकम्बाइन करते हैं. तो इसमें भी क्या हो रहा है कि जब आपका ब्लेंडर रोटेट हो जाएगा, आपका वी इन्वर्ट हो जाएगा, उस टाइम पे क्या हो रहा है, पहले पाउडर डिवाइड हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, वो रिकम्बाइन हो रहा है. ओके, so it is rotated so that the material alternatively collected in the bottom of V. so इसमें क्या होगा, आपका मटेरियल V के बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा. ओके, सो द ब्लेंडर स्पीड इज द की फॉर मिक्सिंग इफिशियंसी. ओके, कि मिक्सिंग ज़्यादा इफेक्टिव हमें अचीव करना है तो स्पीड ऑफ ब्लेंडर, कि कितने स्पीड पे ब्लेंडर को रोटेट किया जाए. ओके, कि एट हाई स्पीड मोर डस्टिंग और सेग्रीगेशन ऑफ फाइंस इज पॉसिबल. कि ज़्यादा स्पीड रही तो क्या होगा, डस्टिंग होगा, ज़्यादा साइज रिडक्शन हो सकता है प्रेशर फोर्स जनरेट होने के वजह से. ओके, वाइल एट लो स्पीड नॉट इनफ शेयर में बी अप्लाइड. मतलब क्या, बहुत ज़्यादा स्पीड रही तो आपका डस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, आपका मटेरियल ज़्यादा साइज रिड्यूस हो सकती है, और कम स्पीड रही तो आपका इनफ शेयर प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से मटेरियल में मूवमेंट होनी चाहिए, टम्बलिंग एक्शन मिलना चाहिए. ओके, मतलब स्पीड कैसी होनी चाहिए, वी कोन ब्लेंडर में ऑप्टिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड. ओके, then advantages, that is if fragile granules are to be blended, twin shell blender or V cone blender is suitable for that. Okay, so they handle large capacities जैसे कि from 20 kgs to 1 ton can be blended by using this V cone blender. Okay, easy to clean, load and unload. then this equipment require minimum maintenance. इसका maintenance कम है, means less expensive. Okay, twin shell, then disadvantages, that is it needs high head space for installation and not suitable for the very fine particulate system. So this is about the V cone blender. Today we will stop now.
We will see the remaining equipments in next lecture. Thank you.